analysis phase is the third step in overall top-down approach, right? The first one step was the first one step was SOA adoption planning. Then the second step was service inventory analysis phase, and the third step was service oriented analysis phase, right? And the fourth stage was service oriented design phase, right? And the fourth stage fifth stage was service oriented logic design, means logic and then development, then testing, then deployment, then maintenance, right? So in upcoming 5 chapters we will be going through two uh, two sections, two steps in the top down approach. The first one is the service oriented analysis stage, and the second one is service oriented design stage. We are going to see only these two steps in top down approach, right? Because the testing part is already going to be done by service testers. The deployment part is going to be done by different persons. So as a developer we need to focus on only two steps. The first one is service oriented analysis phase and the service oriented design phase, right? So the two chapters, the upcoming 5 chapters are basically dealing with these two chapters only, the service oriented analysis. I am again and again repeating these names so that you can uh, grasp each and everything in these upcoming chapters. So try to in the upcoming chapters we are going to see example based concepts, right? Like they are using TLS example, and they are two of the chapters are using university communication type of example. So try to observe the examples and try to implement those concepts which you are gaining from those examples. Try to implement those in your projects, right? So let us start with the TLS example. I am again revisiting that TLS example so that all of us comes to a same page. Where is that? Yeah. So take 2 minutes and please go through this example. Everyone, take 2 minutes and go through this example. These are just surface meaning. And see over here, the first line is Transit Line Systems, a private sector corporation. It is a private sector corporation. It's a private company, and this is the kind of business document. It is not actually the business document. It is a, you can say, a brief of business document, not detailed view of business document, because the business document is written by a business analyst, and it is not anywhere providing the existing business process. They are only providing the overview of the transit line system. So please take 2 minutes and go through this example first so that we can understand the upcoming chapters. बस यहाँ तक पढ़ो, यहाँ तक, क्योंकि मैं बताऊंगा तो फिर लगेगा कुछ हुआ ही नहीं. 2 मिनट लो, पढ़ो. And try to focus on these parts, the highlighted parts, because we are going to see only these parts only.
एवरीवन, हो गया सबका? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर, हो गया सबका? यहाँ तक पढ़ लिए? यस सर. Okay, so in this example, in this coming chapters, we are going to see this transit line system based example. So if you have gone through this transit line system, it is talking about transit line system having 800 people working in their offices, and their offices are like in 4 cities, right? Whatever cities, whatever the country they are operating on, so they have they have offices in 4 cities. And the first line of business, the primary business, they are working on the providing the private transits, right? And the secondary line of business is a maintenance and repair branch, right? The second branch, second line of business is this one, and the primary business is providing the private transit, right? And the second line of business is maintenance and repair branch. And in this maintenance and repairing branch, they are outsourcing their employees. Everyone getting this point? In the maintenance and repairing branch, the TLS the TLS company outsources their TLS service technicians to the public transit service sectors to perform various types of specialized maintenance jobs. Is this clear to everyone? यहाँ तक ये पार्ट? Yes sir. So in the upcoming chapter, we are going to see this business process only, the maintenance and repairing branch. Suppose let's say the TLS company has let's say 500 technicians they have, and they are outsourcing them to the, let's say, public sector companies, right? So जैसे मान लो एक एम्प्लॉय को कहेंगे कि जाओ तुम कंपनी ए में जाओ, तुम कंपनी ए के पास जाओ और तुम वहां पे काम करके आओ, और वो जो तुम्हें पैसा देंगे वो मुझे ला कर दो। समझ रहे हो एवरीवन? यस सर, यस सर. ओके, तो इस बिजनेस प्रोसेस को हमें ऑटोमेट करना है। इन द कमिंग चैप्टर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस पार्ट ओनली, this part only. So in this service oriented analysis phase, what we are going to do, we are going to take a single business process, we are going to take a single business process overview समझने की कोशिश करना। the main thing is overview, the flow. So we are so in the service oriented analysis phase, what is once again, so in the service oriented analysis phase, what we are going to do, we are going to take a single business process, and we are going to come up with this kind of architecture. Means let's say this is service oriented analysis phase, and this phase, it consists of 12 operations, it consists of 12 steps, right? We need to perform these 12 steps on this business process, and after that what we come up with, we can come up with this kind of architecture. Here we have 3 services, here will we have 2 services, and here will we have 1 services. Getting my point? So what will be the input of service oriented phase, service oriented analysis phase? This business process. Which business process? The outsourcing business process. Getting my point? Everyone? Yes sir. Yes sir. And at the end, after performing these 12 steps, what we will be getting? We will be getting this kind of architecture, and this architecture will be used in our next chapter.
for design, service oriented design. Right, everyone? Getting the flow? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now this is analysis field. So what is the meaning of analysis? We are going to see what is the definition of analysis. Suppose we want to get insights from the given data. Let's say Ram wants an apple. So what are the insights we can get from this kind of data? Anyone? First thing we can say Ram is a boy. Ram wants apple. Maybe the second insight we can get from this data is Ram may it may be possible that Ram likes apple very much, right? Everyone. First one is Ram is a boy. The second one is maybe Ram likes apple. The third one is हो सकता है राम को भूख लगा हो. Ram is in hunger state, right? Everyone, try to listen me carefully today. So this is kind of analysis. So अगर मैं कहूं इसमें और कुछ एनालिसिस हो सकता है anyone? Anything, any point anyone wants to add here? कुछ भी बोलो. सही गलत इसमें होता ही नहीं. एनालिसिस में कोई चीज गलत नहीं होता है. एनालिसिस में या तो कम होता है या तो ज्यादा होता है. हो सकता है अगर मैं महेंद्र शर्मा को बोलता तो सिर्फ वो इतना एनालाइज कर पाता. हो सकता है मैं ऋषभ को बोलता तो वो कहता सर मैं 2 पॉइंट एनालाइज कर सकता हूँ. कोई और किसी को बोलता तो वो कहता मैं 3 पॉइंट एनालाइज कर सकता हूँ कि इसमें ये चीज हो रहा है. अगर मैं किसी और को बोलूँ तो कहेगा सर मैं इससे 4 पॉइंट निकाल सकता हूँ. यानी इसमें हम लोग कह सकते हैं कि एनालिसिस गलत नहीं होता है. मतलब अब ये बोल देगो कि ये लड़की है तो ये तो गलत हो जाएगा. लेकिन जो दिख रहा है उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि एनालिसिस क्या कर सकते हैं कि ये कि एनालिसिस कम या ज्यादा हो सकता है लेकिन गलत कभी नहीं हो सकता है. गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ चला गया? 1 second. Yeah. So from this example we can say analysis cannot be wrong at any state, right? We can say analysis का the quantity means कह सकते हैं कि कोई कम या ज्यादा हो सकता है लेकिन एनालिसिस गलत नहीं हो सकता. ठीक है. तो अगर मैं ये कहूं कि मैं चाहता हूं I want a scenario where each one of you come up with these 4 analysis points, means 4 insights from this data. How is this possible? Anyone? I will give you this statement to everyone and you all come up with these 4 statements. Let's say there is 4 statements here and you all come up with these 4 statements. Everyone, how is this possible? Sir, maybe Ram wants to give that apple to someone else. No, I am not asking about the 4th statement. I am asking about how it is possible to all of you can come up with this 4 statement only. Neither lesser than 4 and neither more than 4. How it is possible? So maybe we can put some restriction to everyone that no analyze like this. मतलब और कुछ कोई आइडिया कैसे पॉसिबल है? ये हो सकता है मैं ऋषभ को बोलूं कि इसमें एनालाइज करो तो वो 2 पॉइंट निकाला. मैं महेंद्र को बोला तो वो 1 ही पॉइंट निकाला. मैं किसी और को बोला, लेट्स से राहुल को बोला तो वो 3 पॉइंट इसमें से इस सेंटेंस से निकाल रहा है, एनालाइज कर रहा है. तो ऋषभ सोचेगा कि कोई ऐसा तरीका नहीं है जो मैं भी 3 पॉइंट 4 पॉइंट निकाल सकता था. सर कोई मैं रूल कैसे सोचेंगे एनालाइज ना? करूं? प्रॉब्लम ये है. चार समझ रहे हो? पॉइंट
वो कहा जाता तो सर। हैं? नहीं, तुम हम चाहते हैं कि टोटल एनालाइज कर सके। हमें पता नहीं है कि 4 करना है, हमें पता है कि हमको मैक्सिमम करना है, हम क्या क्या निकाल सकते हैं हमको पता नहीं है। हम इस स्टेट पे पहुंचना चाहते हैं जहां पर ये कहें कि ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं निकल सकता है। अगर इसमें इस सेंटेंस से ऋषभ दो इसमें से इनसाइट निकाल रहा है, तो ऋषभ ये कह सकता है कि हम मैक्सिमम निकाल चुके हैं इसमें से इनसाइट। नहीं कर सकता, नहीं ना कर सकता है एवरीवन, समझ रहे हो? सर पिछला वाला पॉइंट नहीं समझा सर, एक बार रिपीट समझो। अगर इसमें इस स्टेटमेंट से अगर ऋषभ 2 पॉइंट निकाल रहा है, तो क्या वो सबको बोल सकता है कि मैंने मैक्सिमम निकाल दिया? क्योंकि उसे पता तो नहीं है कि मैक्सिमम इसका 4 हो सकता है। ठीक है, अगर कोई 3 निकाल रहा है तो वो भी नहीं बता सकता है, वो भी नहीं कर सकता कि मैंने कंप्लीट पूरा निकाल दिया, इसमें से टोटल इनसाइट्स निकाल दिया, नहीं निकाल सकता है। तो वी नीड अ सर्टेन वे, we need an engineering principles to come up with all different insights from a particular statement, right? Yes sir. Because यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऋषभ के पास जो फिलहाल करंट स्टेट ऑफ माइंड है उससे वो 2 निकाला, महेंद्र शर्मा का जो करंट स्टेट ऑफ माइंड है उससे वो 1 निकाला है, राहुल शर्मा का जो करंट स्टेट ऑफ माइंड है वो 3 निकाला। तो ऋषभ कहेगा ना कि सर मैं क्यों नहीं निकाल पा रहा हूं, मुझे कुछ चाहिए तो मैं कैसे निकालूं, मैं 3 नहीं निकाल पाया, क्या मेरा दिमाग कम है? ऐसा तो नहीं है। समझ रहे हो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम समझो। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली यूज इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। इंजीनियरिंग प्रिंसिपल से क्या फायदा होगा कि तुम करो, मे बी राहुल करे या महेंद्र शर्मा करे या ऋषभ करे, अगर स्टेटमेंट हमारा राम वांट्स एन एप्पल, तो all of them can come up with 4 insights. Getting my point? How? Because they are using standard engineering principles of analysis. Sorry, standard principle of analyzing. Getting my point? All of them are using standard principles of analyzing techniques, so that they all come up with 4 insights, and that will be the maximal. Getting my point? Yes sir. Yes sir, yes. So those standard principles are 12 steps. 12 steps we are going to see each one of them step, so that when you will be given a business document, let's say this business document is given to Rishabh, Mahendra Sharma and Rahul Sahu, it may not happen that Rishabh will come up with a different kind of architecture, Mahendra Sharma will come up with different kind of architecture, and Rahul Sahu will come up with different kind of architecture, right? It may be possible, but if we apply certain steps, engineering principles, then this business document will get into a new architecture. The both sorry, the architecture the architecture drawn by this Rahul Sharma, Mahendra Sharma and this Rishabh will be same in if we are applying certain engineering principles. Getting my point? Yes, Why sir. do we need steps? Why do we need steps? Because अगर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स नहीं होगा तो सब अलग अलग एनालाइज करके चले आएंगे, समझ रहे हो? और कोई कहेगा कि मेरा अच्छा है, कोई कहेगा मेरा अच्छा है। समझ रहे हो? Yes sir. Okay. Yes sir, sir मैंने कहा था set of rules we can follow. या सेट ऑफ रूल्स, नहीं तो क्या होगा कि सबका आर्किटेक्चर अलग अलग हो जाएगा, तो टीम में कैसे काम होगा? नहीं होगा काम ना, कल को टीम में काम नहीं होगा। तो सो वी विल रिक्वायर सर्टेन इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स और सर्टेन स्टैंडर्ड रूल्स, सो ईच ऑफ देम शुड फॉलो दिस 12 स्टेप्स टू एनालाइज दोज बिजनेस डॉक्यूमेंट एंड come up with a certain architecture that
like architecture A and architecture B and architecture C, and these three architecture will be same, right? सेम नहीं होगा लेकिन कुछ छूटेगा नहीं, समझ रहे हो? Yes, sir. Okay. So now we are going to start our chapter. Yeah. One second. So what are those standard steps we need to follow to come up with a standard architecture? So these are the steps. Please go through this. See, what is the first step? See, these are the 12 steps. The first step is decompose business process. The second step is filter out unsuitable actions. Third step is define entity service candidates. Take 1 minute and go through on your own. मैं बताऊंगा तो सुनने का नहीं कोई, एक बार खुद देखोगे तो दिमाग में रहेगा कि कौन सा स्टेप चल रहा है. 1 मिनट लो और देखो सब. Go through each one of the steps. Done. The fourth is decompose business process. Whatever the business document you have, take single business process and decompose it. How to decompose it? I don't know how to decompose it. Let further move ahead. The second step is filter out unsuitable actions. What are the different unsuitable actions? We will see. Then the third step is define entity service candidates. The first step is the third step is define entity service candidates. The fourth step is identify process specific logic. Then we have apply service oriented principles. Then sixth step is identify service composition candidates. And the seventh step is analyze processing requirements. Then eighth step is define utility service candidates. The ninth step is define microservice candidate. The 10th step is apply service oriented principles. You can see the 10th step and the 5th step is similar. Similarly, 6th step and 11th steps are similar. Identify service composition candidates, and the 11th step is revise service composition candidates. And again, the step 12 is revise capability candidate grouping. Let's see each one of them. So so what is our business process over here? What we are going to do? So we are going to here we are considering the which business process? Anyone? Maintenance and repair. Yeah. So we are going in this throughout this chapter, we are going to focus on only single business process, right? So if you are working on your project, so you need to find out what are the different business process and apply 12 steps on each of the business process, right? So that you can come up with that 3 layers kind of architecture, right? At the end, we will see this diagram. See.
You can see over here at the after performing this 11th step, we have this kind of architecture, and this is more or less the 3-layer architecture we have seen in our chapter number 8, right? So this is the suppose if you have performed for business process 1, similarly if you have performed for business process once again business process 2, so we may have one business process for this one, let's say BP2, and may have one here and one here and let's say one here. Similarly, if you are performing these 12 steps for BP3, so we may have one more here, then two, let's say two more over here, then one over here, then one over here. So you may be noticing that this is actually the 3-layer architecture, right? In the chapter number 8. Okay. So let's move it. So in the TLS, what TLS does, TLS outsources a number of its employees on contract basis to perform various types of specialized maintenance jobs, right? So suppose let's see the second this highlighted point. When these employees fill out their weekly time shifts, they are required to identify what portions of their time are spent in customer sites, right? तो सपोज मान लेते हैं, समझने की कोशिश करना, ये सिर्फ हमें बता दिया है, टीएलएस एकदम शॉर्टकट में दे दिया है क्योंकि ये बिजनेस डॉक्यूमेंट एक्चुअल में है नहीं, ये उसका ब्रीफ है। तो हम लोग को इसमें क्या करना क्या है कि मान लेते हैं एक ये टीएलएस का ऑफिस है, टीएलएस का ऑफिस है, यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, ये सब टेक्नीशियंस है जो आउटसोर्स किए जाएंगे, वो दूसरे पब्लिक सेक्टर में मींस पब्लिक कंपनी में जाके काम करने वाले हैं। तो इसको कैसे पता चलेगा कि इसको यहाँ काम करने जाना है और 3 घंटे के लिए काम करना है और ओवर टाइम करना है या नहीं, कैसे पता चलेगा? एनीवन? इसको यहाँ जाना है, इसको यहाँ जाना है और ये मंडे को जाना है, इसको ट्यूसडे को यहाँ जाना है, इसको वेडनेसडे को यहाँ जाना है, कैसे पता चलेगा? एनीवन? सर सबके पास अपना अपना वर्क शेड्यूल होगा, सबके पास अपना अपना वर्क शेड्यूल होगा, ठीक है। तो वो वर्क शेड्यूल कहाँ पे रहेगा? वो वर्क शेड्यूल रहेगा कहीं पे उनके ऑफिस में चिपका हुआ होगा। क्यों चिपका हुआ होगा? क्योंकि उनका सिस्टम अभी तक ऑटोमेट नहीं किया गया है। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? दैट इज व्हाई वी आर ऑटोमेटिंग देम। अगर वो उनके मोबाइल पे नोटिफिकेशन चला जाता है कि उनको यहाँ जाना है तो वो तो ऑटोमेट है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। वी आर हेयर फॉर ऑटोमेटिंग देयर सिस्टम। सो अभी उनके पास कौन सा सिस्टम है? जहाँ पे उनके ऑफिस में कोई वॉल पे चिपका हुआ होगा कि हाँ ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है और ये अलग अलग दिन, और ये टाइम होगा और ये होगा, ये टाइम होगा कि 10 से 11, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, और यहाँ पे होगा उनका नाम जो आउटसोर्स किए गए हैं दूसरे जगह पे, समझ रहे हो? उनका एड्रेस, और मान लो ये एम्प्लॉय का नाम है तो एक और अलग बॉक्स होगा रिलेटिव टेबल टाइप का, और इसमें लिखा होगा कि उस जहाँ पे इनको आउटसोर्स किया गया उनका एड्रेस क्या है और उनको ओवर टाइम करना है या नहीं। समझ रहे हो एवरीवन? यस सर। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये कैसे होगा? हम तो ऑटोमेट करना चाहते हैं, हमें कैसे मालूम चलेगा? एनीवन? कोई पूछ सकता है तो आप बता दिए तो हम समझ गए कि ऐसे होगा, लेकिन हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये करना चाहिए था? एनीवन? जल्दी बताओ, क्वेश्चन समझ रहे हो कि नहीं?
अरे बोलो, नहीं पता है तो बोलो कि नहीं मालूम है सर, नहीं पता चल रहा है, क्या होगा? सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तुम लोग? जैसे मैं बोला कि उनके ऑफिस में ये चिपका हुआ होगा, उनके वॉल पे चिपका होगा, जहाँ पे एम्प्लॉय जाते हैं देखते हैं, जो जनरल पब्लिक प्लेस टाइप का उनके कंपनी में, वहां पे चिपक जाता होगा, यहाँ पे चिपकाया जाता होगा वॉल पे कि मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, हर दिन का एक शेड्यूल होगा। और ये होगा टाइम 10 से 11, 11 से 12, 1 से 2, 2 से 3, 4। और यहाँ पे मंडे को लेट्स का नाम है अभिषेक, तो अभिषेक आउटसोर्स किया। गेटिंग माय पॉइंट? अभी इसका मतलब क्या हुआ कि मंडे को 10 से 11 के लिए, अगर यहाँ पर भी लिख दिया अभिषेक, तो इसका मतलब 10 से 12 के लिए अभिषेक को आउटसोर्स किया गया है। और कहाँ आउटसोर्स किया गया है? तो इसको अलग टेबल में लिख सकते हैं, जैसे जैसे हम लोग डेटाबेस में बनाते हैं, अलग एक चार्ट बना के लिख सकते हैं। समझ रहे हो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, तो हम लोग यहां से देख ले, अब अभिषेक को कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपनी में उसको आउटसोर्स किया गया है? तो अभिषेक आएगा यहाँ पे एक और टेबल में, एक और चार्ट में, जो चिपका रहेगा दीवार पे कहीं, और उसमें से देखेगा कि इसको कहाँ आउटसोर्स किया गया है, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, और क्या इसको ओवर टाइम करने के लिए कहा गया है या नहीं। यहाँ ओवर टाइम का एक कॉलम होगा, तो ओवर टाइम में यस और नो होगा, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ होगा। तो ये जो हम लोग इतना देख रहे हैं, ये हम बता रहे हैं, तो तुम लोग मान लीजिए कि ऐसा होता होगा। लेकिन अगर हमको कोई अपना प्रोजेक्ट का बात करे, तो तुम्हें कैसे मालूम चलेगा ये चीज कि ये करना चाहिए था? ये कैसे पता चला कि ये सही हम बता रहे हैं? एनीवन? गेटिंग माय क्वेश्चन? Yes, sir. कैसे पता चला कि हम सही बता रहे हैं? हो सकता है गलती बता रहे हो। सर अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, कि मतलब कोई और कहीं और किसी और ऑफिस में चला जाएगा और कुछ मतलब। ये तो हम समझ गए, ये जनरल टेक्निक तुमको लग रहा है कि ऐसा होता होगा। हो सकता है ऐसा नहीं होता होगा। हो सकता होगा कि एक एक स्टाफ होगा, एक और एम्प्लॉय होगा, वो सबके रूम रूम में जाकर के बोलता होगा कि अभिषेक, यू नीड टू गो टू दिस ऑफिस फ्रॉम दिस वन टू दिस वन। ये भी तो हो सकता था एक तरीका, Sir, ये हो सकता था ये। again we can have a ऑथोराइज्ड some set पर्सन of होगा सर। सॉरी सर ऑथोराइज्ड पर्सन होगा, वो कहेगा तो मतलब कुछ। तो कैसे मालूम चलेगा कि हम गलत बता रहे हैं, ये होता है या ये होगा? कैसे मालूम चल रहा है? समझ नहीं रहा सर बिजनेस प्रोसेस से, मतलब प्रोसेस। बिजनेस डॉक्यूमेंट से। बिजनेस डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि वहां पे ऐसा शेड्यूल चलता है। ऐसा नहीं कि एक बंदा है और वो रूम में सबको जाके घर पे बोलता है कि अभिषेक को यहाँ जाना है, महेंद्र को यहाँ जाना है, विकास को यहाँ जाना है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं होता है। कहाँ से पता चलेगा? ऐसा होता है। क्यों? कहाँ से पता चलेगा? वो बिजनेस डॉक्यूमेंट से पता चलेगा। ये रॉकेट साइंस नहीं है जो हम बता दिए ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? बिजनेस डॉक्यूमेंट में जो बिजनेस एनालिस्ट है ना, वो लिखा हुआ होगा उसमें एक्यूरेट करके कि वहां पर प्रोसेस जो है ऐसे चलता है। समझ रहे हो? टीएलएस कंपनी में Yes, sir. प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ऐसे चलता है, न कि ऐसे चलता है। एक प्रोसेस ये भी चल सकता था, हो सकता था एक टीएलएस कंपनी है, एक एसएलटी कंपनी होता, तो वहां पर हो सकता था ऐसा चलता हो। तो उसको ऑटोमेट करने जब जाएगा, जब बिजनेस एनालिस्ट जाएगा, अमिताभ बच्चन जाएगा उससे पूछने कि आपके यहाँ कैसे चलता है काम, तो वो बताएगा कि हमारे यहाँ एक स्टाफ है, एक एम्प्लॉय है, जो सब एम्प्लॉय के पास जाके बताता है कि आपको कहाँ आउटसोर्स किया गया है। समझ रहे हो? तो उसके बिजनेस डॉक्यूमेंट में लिखा होगा ऐसा कि ऐसे काम होता है। एवरीवन? यस सर। ओके, ये इसको नहीं समझोगे तो ऑटोमेट कैसे होगा? समझ रहे हो? दिस इज कॉल्ड एनालिसिस, कि कैसे काम हो रहा है। बिजनेस प्रोसेस को हम लोग समझ रहे हैं कि उसका बिजनेस प्रोसेस कैसे काम करता है, मतलब उसका अगर कोई आउटसोर्स कर रहा है तो वो कैसे फ्लो करता है, उसका वो वर्क फ्लो उसका कैसा है। समझ रहे हो एवरीवन? ओके। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या होगा कि उनके वॉल पे और कहीं भी एक पब्लिक प्लेस पे एक शेड्यूल होगा। ओके। द सेकेंड थिंग इज कि जो भी कस्टमर है उनका, सपोज एबीसी कंपनी ने उसको चाहिए
उसको चाहिए कि 5 एम्प्लॉय हमको दीजिए मंडे टू फ्राइडे, और मंडे टू फ्राइडे एबीसी कंपनी को 5 एम्प्लॉय चाहिए, और चाहिए कैसे, मंडे को चाहिए 10 से 12, ट्यूसडे को चाहिए 12 से 2, और लेट्स से वेडनेसडे को चाहिए 2 से 3। समझ रहे हो, इस टाइप का कुछ फ्लो है एवरीवन। यस सर। यस सर। ओके, तो इस कंपनी को 5 एम्प्लॉय चाहिए मंडे टू फ्राइडे। मंडे को 10 से 12 चाहिए 5 एम्प्लॉय, ट्यूसडे को 12 से 2 चाहिए, और वेडनेसडे को 2 से 3 चाहिए 5 एम्प्लॉय। उसी तरह से फ्राइडे और सैटरडे कुछ होगा। तो ये इसके पास एप्लीकेशन लेके आया कि हमको आउटसोर्स कीजिए, हमको 5 एम्प्लॉय हमको दीजिए। तो ये टीएलएस का काम ही है टेक्नीशियन प्रोवाइड करना। ये कहेगा ठीक है हम भेज देंगे। तो वो क्या करेगा, 5 लोगों को शेड्यूल बनाएगा और उसमें से 5 लोग को भेज देगा 10 से 12 यहाँ पे, ठीक है। तो जो कंपनी को चार्ज किया जाएगा इसी शेड्यूल के अनुसार किया जाएगा। यस सर। तो जो चार्ज करेंगे उनको कहेंगे इनवॉइस। तो सेकेंड डॉक्यूमेंट जो हम लोग को इसमें फॉलो होने वाला है वो है इनवॉइस। फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज विच शेड्यूल डॉक्यूमेंट, फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज शेड्यूल, द सेकेंड डॉक्यूमेंट इज इनवॉइस। इनवॉइस समझ में आया, जिसपे लिखा होगा कि किस तारीख पे, किस डेट पे, किस तारीख पे कितना एम्प्लॉय कितने से कितने बजे तक काम किया। एवरीवन? यस सर। ओके, तो तो दूसरा डॉक्यूमेंट ये है। और तीसरा डॉक्यूमेंट जो हमारे पास होने वाला है, सोमशेखर इज अवेलेबल और नॉट? पता लगा मैं उस समय से हिंदी में बोले जा रहा हूं, उसको समझ में नहीं आ रहा। सोमशेखर, एनीवन चेक? सोमशेखर हेलो। ओके, the third document is the first document was schedule, or the third document is time sheet. टाइम शीट समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ पे टाइम शीट क्या है? टाइम शीट वो डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा होगा, ये टाइम शीट ईच एम्प्लॉय के पास होगा, ईच एम्प्लॉय के पास। ये शेड्यूल, तो ये शेड्यूल क्या बताता है, ये कंपनी के पास होगा। ये किसके पास होगा? ये टीएलएस कंपनी के पास होगा, जो जनरेट करेगा आफ्टर गेटिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम पर्टिकुलर कंपनी एबीसी, राइट एवरीवन? Yes sir. Okay, and after delivering the services to ABC company, the TLS will generate an invoice for the ABC company, right? Yes sir. Okay, and the third document required over here is timesheet document. ये किसके पास होगा? ये each employee कैरी करेगा। ये टाइमशीट डॉक्यूमेंट क्या होगा? ये टाइमशीट डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ये कंपनी के पास तो है कि हाँ इसको प्रूफ है कि ये तुम भेजे मेरे को, इसको प्रूफ है कि तुम मेरे को भेज दिए, मतलब कितना काम निकला होगा। लेकिन मेरे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है कि हम किस दिन पे किस कंपनी में काम कर रहे थे। समझ रहे हो एवरीवन? Yes sir. तो मेरे पास भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा, एक ऐसा चार्ट होगा, मतलब इस टाइप का, जिसमें लिखा होगा टाइमशीट कब होगा? 1 वीक का होगा, मान लो 1 वीक। तो मतलब कंपनी में कैसा होगा कि इस वीकेंड पे लेट्स से संडे को, संडे 7 2 और 21 है आज, तो 1 वीक हो चुका है। तो ये कंपनी क्या कहेगी, 1 से लेकर 7 तक में जो एम्प्लॉय कहाँ कहाँ काम किया है ना, वो हमको रिपोर्ट दो। तो वो फॉर्म होगा इस टाइप का कुछ, जिसमें होगा फिल योर नेम,
माय नेम इज अभिषेक, एम्प्लॉय कोड, और इसमें होगा कि मंडे को 10 से 12, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो ये कंपनी का नाम हमको फिल करना होगा कि मंडे को 10 से 11 मैं एबीसी कंपनी में था और 11 से 12 भी मैं एबीसी कंपनी में था। फिर मंडे को 1 से 2 मैं बीसीडी कंपनी में था और 2 से 3 मैं एलएमएन कंपनी में था। समझ रहे हो? यस सर। एवरीवन, तो यस सर। ईच डे का उसके पास एक रिकॉर्ड होगा ताकि एम्प्लॉय भी अपने आप को फिल कर, अपने अपने हिस्ट्री को फिल करते रहे कि मैंने किस जगह जगह पर काम किया है, ताकि कल को मैच करने में आसानी होगा। कल को क्या होगा कि एम्प्लॉय कहेगा कि मैं सप्ताह में 25 घंटा काम किया हूं और कंपनी कहेगी नहीं, हम तो तुमको 20 ही घंटा बोले थे। समझ रहे हो एवरीवन? यस यस सर। तो यहाँ पे इसमें क्या है, इनकंसिस्टेंसी को हटाने के लिए हमारे पास कौन सा डॉक्यूमेंट है? टाइम शीट डॉक्यूमेंट है, ताकि ईच एम्प्लॉय अपने हर वीक का रिकॉर्ड रख सके कि वो किस वीक में किस दिन पे कौन से टाइम पे कहां पे काम कर रहा था। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। Okay. यस सर। So, three documents are required. Three documents are required to perform, to automate which service, to automate which business process? Everyone, outsourcing business process. For outsourcing business process, which three documents are required by us? First one is timesheet document. The second one is कौन सा डॉक्यूमेंट? इनवॉइस। इनवॉइस डॉक्यूमेंट। एंड द थर्ड डॉक्यूमेंट वाज शेड्यूल। शेड्यूल डॉक्यूमेंट, राइट। तो अब हुआ क्या, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। 7 तारीख आज हुआ, तो एक क्लर्क बैठा होगा, एक क्लर्क बैठा हुआ है कंपनी में, टीएलएस कंपनी में, तो इसके पास बहुत सारा टाइमशीट जमा हो जाएगा। ये टाइमशीट बहुत सारा जमा हो गया, ठीक है, टाइमशीट जमा हो गया, और इसके पास इधर एक शेड्यूल रखा हुआ है बहुत सारा। तो ये क्लर्क क्या करने वाला है? ये मैनुअल प्रोसेस है, इसी को तो ऑटोमेट करना है हमको। ये क्लर्क को यहां से जॉबलेस कर देना है, ठीक है। तो इसको ऑटोमेट करने के लिए ये जो क्लर्क का जो काम है ना, वो कौन करेगा? आउटसोर्सिंग बीपी बिजनेस प्रोसेस। ये क्लर्क को हम लोग यहां से निकाल फेंकेंगे। तो ये क्या करेगा? टाइमशीट डॉक्यूमेंट हमारे पास रखा हुआ है, पहले हमको मैनुअल प्रोसेस को समझना पड़ेगा। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग मैनुअल प्रोसेस को समझ रहे हैं। व्हाट इज द मैनुअल प्रोसेस ओवर हियर? दैट इज द बिजनेस प्रोसेस which is actually done manually in the TLS company, right? And how we are getting this insights? From the business document. Getting my point, everyone? यस सर। यस सर। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये सब कहां से आ गया। हम इतना नहीं सोच पाएंगे सर, ये सब हम कैसे सोच ले ऐसे। तुम्हें सोचना नहीं है, ये कौन सोचेगा? ये किसी को सोचना नहीं है। सब अपने अपने जगह पे अपना अपना काम सही से करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो कौन सही जगह पे काम किया है सही से? जो हमारे पास ये सब चीज है, बिजनेस एनालिस्ट। ये सब चीज कौन निकाल कर देगा? बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है। वो बताएगा कि इस कंपनी में ऐसा कुछ हो रहा है। जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं ना, तो आई एम परफॉर्मिंग द जॉब ऑफ द बिजनेस एनालिस्ट राइट नाउ, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा? ये क्लर्क यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके पास टाइमशीट डॉक्यूमेंट्स होगा बहुत सारा एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय E1, एम्प्लॉय E2, एम्प्लॉय E3। 7 तारीख का बात है, ये आज की बात है, मतलब ये, हाँ ये मंडे की बात है। क्लर्क के पास एक वीक का जमा होगा, और यहाँ पे शेड्यूल जमा होगा, लास्ट वीक के जो रिलीज हुआ था शेड्यूल वो जमा होगा, और इसमें से ईच एम्प्लॉय से निकालेगा वो, और देखेगा कि इस एम्प्लॉय को इस शेड्यूल में वहीं पे एक्चुअल में जॉब मिला, मतलब आउटसोर्स किया गया था या नहीं। समझ रहे हो? यस इस ये एम्प्लॉय मंडे को कह रहा है कि मंडे को मैं एबीसी कंपनी में था, और मंडे का शेड्यूल में अगर इस एम्प्लॉय का नाम नहीं है तो ये पक्का झूठ लिख दिया है यहाँ पे। एवरीवन,
यस सर। यस सर। अगर उसी तरह से इस एम्प्लॉय को मतलब E1 एम्प्लॉय है कोई, उसका शेड्यूल मंडे का हम चेक कर रहे हैं, अगर उस मंडे के शेड्यूल में चेक करते हैं उसको 5 घंटे का काम करने के लिए मिला हुआ था और ये वहां से 4 ही घंटे में निकल गया है, तो हमको जो चार्ज करना पड़ेगा इनवॉइस के अकॉर्डिंग, तो वो उसमें कितना का चार्ज करना पड़ेगा? 4 घंटे का। यस सर। एवरीवन, यस सर। तो ये सब जो ये कॉमन चीज है, ये तो हम लोग समझ सकते हैं ना कि कैसे काम हो रहा होगा कंपनी में, ठीक है। हमको मिलाना है एक दूसरे से, इस टाइप का कॉम्बिनेशन बनाना है ताकि ये एक्चुअल बिजनेस प्रोसेस बन जाए। बिजनेस प्रोसेस मतलब जो कंपनी में किया जाता है, बिजनेस है वो प्रोसेस है, राइट। तो ये एक एक्चुअल बिजनेस प्रोसेस है। ये जो कंपनी मिलाना था इसको, इससे एम्प्लॉय 1 का शेड्यूल मिलाना है इसके मतलब थोड़ा ऑन मंडे इफ एम्प्लॉय 1 is assigned for company ABC, right? And on the schedule of Monday, if there is any discrepancies, whatever the name, inconsistency you can say, अगर कुछ इनकंसिस्टेंसी यहाँ पे आती है, यहाँ पे डाटा यहाँ पे मैच नहीं करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक नोटिफिकेशन भेज देंगे किसको? इस E1 एम्प्लॉय को, E1 एम्प्लॉय को भेज देंगे एक नोटिफिकेशन कि आपका जो टाइमशीट है वो रिजेक्ट हो गया है, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन सर एम्प्लॉय थोड़ी ना बना रहा है टाइमशीट वगैरह तो बिजनेस एनालिस्ट कर रहा है ना, तो इसमें एम्प्लॉय की क्या गलती नहीं, कि अगर वो बिजनेस एनालिस्ट नहीं कर रहा है। बिजनेस एनालिस्ट तो पता करके आया कि कैसे काम होता है, वो कुछ छेड़छाड़ नहीं किया प्रोसेस में। बिजनेस एनालिस्ट देखेगा सिर्फ, वो अमिताभ बच्चन है, वो सिर्फ देखेगा कि हुआ क्या था पास्ट में, उसको एनालाइज कर रहा है, वो बदल थोड़ी सकता है कि क्या होता है कंपनी में। बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या है? वो सिर्फ देखेगा कि होता क्या है बिजनेस में, मतलब बिजनेस प्रोसेस में हो क्या रहा है वहां। कोई कंफ्यूजन है? कौन पूछ रहा है ये अभी? सर मैं बोला सर तो मतलब नाम टाइमशीट बोलो। कौन? सर विकास सर। ओके, हाँ सर बोलो। तो मैं बोल रहा हूँ कि टाइमशीट मतलब जो कोडर या डेवलपर जो भी है वही टाइमशीट भी अपनी बनाएगा और वही अपना नॉर्मल काम भी जो करता है वो अभी कोडर है ही नहीं, अभी हम लोग बिजनेस लेवल पे देख रहे हैं, अभी कोडर है ही नहीं। ये तो सब टेक्नीशियन। मैनुअल प्रोसेस से हो रहा है। एक कागज निकला हुआ, एक डॉक्यूमेंट है जो चिपकाया हुआ रहता है। अभी तुम लोग आते हैं यहाँ पे, तो तुम्हारा जो जो तुमको शेड्यूल मिला है, टाइम पीरियड मिला है ना, कौन सा क्लासेस का कब होने वाला है, यस सर। तो वो भी चिपका रहता है डॉक्यूमेंट। कहाँ पे? तुम्हारे डिपार्टमेंट में आगे चिपका रहता है, ठीक है। तो तुम लोग जाओगे, उसको फोटो क्लिक करोगे, अपने पास रख लोगे। तो उसी तरह से कंपनी में भी होता है, जहां पे मैनुअल प्रोसेस चल रहा है अभी भी, ठीक है। ठीक है सर। मूवी में देखते नहीं हो, कोई काम करता है, वो जाता है, एक आदमी बैठा रहता है क्लर्क टाइप का, उसको देखता है कि कितना देर काम किया, वो अपना पैसा निकाल के उसको दे देता है, बस तुम अपने घर। तो वो मैनुअल प्रोसेस है, तो उसको ऑटोमेट करना है, उस क्लर्क को वहां से हटाना है। किसी के दिमाग में और कोई कंफ्यूजन चल रहा है? एनीवन? समझ गए? विकास पूछा था अभी। यस सर समझ गया सर। ओके, तो ये कुछ होने वाला है हमारे पास। और हाँ, तो अगर क्लर्क को पता चलता है कि ये इम्प्लॉय जिस टाइम में जिसको शेड्यूल किया गया था 4 घंटे के लिए, ये इसको मतलब ऐसा कुछ झूठ बोल रहा है, कुछ भी कारण से, चाहे यहाँ पर 5 घंटा लिखा हुआ था कि इसको 5 घंटा लौट हुआ, ये 4 घंटा में वहां से चला गया, या उसको 5 घंटा मिला था, ये वहां पर 6 घंटा काम करके आया, ठीक है। तो क्या इसको ओवर टाइम का अलाउड था या नहीं? पता लगा इसको 6 घंटा अलाउड नहीं था, सिर्फ 5 घंटा अलाउड था, और वो जो 1 घंटा था वो किसी और कंपनी में अलाउड था, तो वहां तो गैप छोड़ दिया होगा कंपनी, वहां तो वो नहीं गया होगा। एवरीवन? यस सर। तो उस केस में क्या करना है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हम इसमें कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। उस केस में कंपनी क्या करती है, टीएलएस क्या करती है, बिजनेस एनालिस्ट ऐसा ऑब्जर्व करके आया कि उस कंपनी में ऐसा हो रहा है, वो गलत हो रहा हो या सही हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, उस कंपनी में ऐसा हो रहा है कि ऐसा कुछ होता है तो उसका टाइम शीट रिजेक्ट कर दिया जाता है, और उसका नाम फिर से एक लिस्ट पे चिपका दिया जाता है, फिर से एक लिस्ट पे चिपका दिया जाता है जिसमें रहेगा टाइम शीट रिजेक्शन, और उस लिस्ट में उसका नाम होगा E1। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस सर।
यस और सर। नहीं, अगर सब उसका टाइम शीट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल चल रहा है, अगर वो टाइम शीट उसमें जो डेटा है और उसके टाइम शेड्यूल के अनुसार चल रहा है, अकॉर्डिंगली चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लर्क किसको मैसेज करेगा, मैनेजर को, कि अब उसको पेमेंट मिल सकता है उस वीक का। गेटिंग माय पॉइंट? तो ओवरव्यू क्लियर है बिजनेस प्रोसेस, ये आउटसोर्सिंग बिजनेस प्रोसेस सबको? यस सर। यस सर। सबको क्लियर हो गया? ओके। तो इस आउटसोर्सिंग बिजनेस प्रोसेस को, इस बुक में जो इस चैप्टर में जो नाम दिया गया है, उसको नाम दिया गया है आउटसोर्सिंग बिजनेस प्रोसेस। जहां पर हम लिखे हैं आउटसोर्सिंग बिजनेस प्रोसेस, इसका क्या नाम दिया गया है, इज इक्विवेलेंट टू टाइम शीट बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, इसको आउटसोर्सिंग बिजनेस प्रोसेस नहीं, टाइम शीट बिजनेस प्रोसेस नाम दिया गया है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है, जो हम आउटसोर्सिंग बोले उसको समझ लो, टाइम शीट बिजनेस प्रोसेस नाम दिया गया है, बस। अब चालू करते हैं हमारा चैप्टर, अब समझने में आसानी होगा। तो अगर हम उस डॉक्यूमेंट को दिखाएं जो टाइम शीट टाइप का होता है, 1 सेकेंड में दिखा देता हूं। देखो ये वीकली टाइम शीट टेम्पलेट, दिखा सबको? यस सर, यस सर। यस सर। इसमें देखो क्या क्या लिखा हुआ है। एम्प्लॉय नेम है, मंडे को टास्क क्या है और कितना घंटा तक काम करना है, फिर ट्यूसडे को टास्क क्या है, कितने घंटे तक काम करना है। ठीक है, और ये ऊपर में देखो, यहां पर देख सकते हो इस पोजीशन पे ये किस मंथ से किस डेट के बीच में है, उसके लिए ये किस मंथ से किस डेट के बीच में है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, कंपनी नेम किस कंपनी का है, ये टीएलएस का कंपनी का है। तो ये एक टेम्पलेट है जो तुमको वर्ड, इस सब वर्ड एडिटर में मिल जाएगा, तो वहां से तुम लोग बना सकते हो अगर कल को फ्यूचर बनाना हो तो। ठीक है, तो ये टाइम शीट डॉक्यूमेंट है, ये बहुत सारा डॉक्यूमेंट लेके बैठेगा क्लर्क, और उधर शेड्यूल का डॉक्यूमेंट लेके बैठेगा और मैच करते रहेगा, उसका जो काम है उस टाइप से वो करेगा। तो जरूरी नहीं है कि यही डॉक्यूमेंट हो उसके पास, वो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको मैनिपुलेट कर सकता है, उसको ऑल्टर कर सकता है। ठीक है, दूसरा वीकली एम्प्लॉय टाइम शीट देखो, एम्प्लॉय नेम, उसका सुपरवाइजर कौन है, कौन सा वीक के लिए है ये, इसमें टाइम के अनुसार, मतलब रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। टोटल नंबर ऑफ आवर्स ही हैज वर्कड ऑन, ही और शी हैज वर्कड in particular specific week, right? So all things can be mentioned over here weekly, right? So, and let's see the example of this one. This is an example of employee schedule template. यहाँ पे देखो, एम्प्लॉय 1 को ट्यूसडे को 7 से 3 बजे तक फ्रंट डेस्क पे रहना है, ये शेड्यूल है एवरीवन। यस सर। यस सर। तो ये कंपनी का है जहाँ पे सपोर्ट इंजीनियर का जॉब जिसको मिलता है ना, तो वो सब यही करते हैं अलग अलग, उसको कहीं फ्रंट डेस्क पे, कभी कोऑर्डिनेटर पे, कभी कहीं कहीं पे उसको भेजते रहते हैं, क्योंकि वो फिक्स जॉब नहीं होता है, कहीं पे भी उसको भेज सकते हैं। तो उस काइंड के सिनेरियो के लिए है ये, इसका हो गया। वन सेकेंड, so you can see over here, when these employees fill out their weekly time sheets, they are required to identify what portion of their time has spent on their customer sites. अब ये सब लाइन क्लियर है सबको? यस सर। तो अब इस डॉक्यूमेंट को पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ नया नजर नहीं आया, जो हम लोग अभी बताए हैं, जो मैंने अभी बताया है, अगर उसको कंसीडर करते हो तो हम लोग कहां पर पहुंच चुके हैं, यहां पे। तो फर्स्ट स्टेप, टू डिकम्पोज द बिजनेस प्रोसेस, हाउ टू डिकम्पोज अ पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस।
ठीक है, तो बिजनेस प्रोसेस डिकम्पोज करने का तरीका क्या है? द फर्स्ट इन 12 स्टेप्स यू कैन सी ओवर हियर इन दिस 12 स्टेप द फर्स्ट स्टेप इज डिकम्पोज अ बिजनेस प्रोसेस. तो हाउ टू डिकम्पोज अ बिजनेस प्रोसेस? सो लेट्स सी how to decompose a given business process. We begin by taking the documented business process. The first line says we begin by taking the documented business process, right? जहाँ पे उस डॉक्यूमेंट में जहाँ पे लिखा हो सब चीज की कौन सा चीज कैसा चल रहा है, जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, ये इस बुक में नहीं दिया हुआ है. जो मैंने अभी बताया है पूरा कहानी वो इस बुक में नहीं दिया हुआ है. तो उसको अगर भूल गए तो ये समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? हियर इज द ब्रेकडाउन ऑफ द करेंट बिजनेस प्रोसेस. रिसीव द टाइम शीट. ये मैनुअल प्रोसेस की बात कर रहा है. ठीक है, अभी तक हम लोग जो कर रहे हैं वो मैनुअल बिजनेस प्रोसेस की बात कर रहे हैं. अभी हम लोग आईटी में गए ही नहीं, अभी हम लोग सिर्फ बिजनेस में है. ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज डिकम्पोज द बिजनेस प्रोसेस. सो वी आर कंसिडरिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस ओनली. तो द फर्स्ट स्टेप इज रिसीव टाइम शीट, verify time sheet. If time sheet is verified, accept the time sheet and end the process. And if it not, then reject the time sheet submission. Getting this whole point, 4 points, everyone? Yes sir. Okay. तो हुआ क्या, ये 4 स्टेप क्यों है? ये ऐसा हुआ कि बिजनेस एनालिस्ट गया, एक एम्प्लॉय से पूछा कि भाई साहब मुझे बताइएगा कि आपके कंपनी में टाइम शीट बिजनेस प्रोसेस को कैसे किया जाता है. तो वो बोलता है कि क्यों, कुछ नहीं, हम लोग टाइम शीट लेते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसको वेरीफाई करने के बाद अगर सही निकला तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं तो खत्म करते हैं. ये बोला वो. समझ में आया सबको? तो वो बिजनेस एनालिस्ट बोलता है, वो बिजनेस एनालिस्ट उसको बोलता है कि मैं बिजनेस एनालिस्ट हूं, थोड़ा डिटेल में बताइए ताकि हम आपके बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट कर सके. तो वो पूरा डिटेल में जाना स्टार्ट होता है. तो लेट्स फ्रैगमेंट दिस ईच ऑफ these स्टेप्स. हाउ टू रिसीव अ पर्टिकुलर टाइम शीट, हाउ टू वेरीफाई, एंड हाउ वी कैन से अ पर्टिकुलर टाइम शीट इज वेरीफाइड, एंड हाउ टू एक्सेप्ट देम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्ट ओवर हियर, and how to reject them? What is the meaning of reject over here, right? So in case of particular business process, what are the meaning of each of these business process step we will going to see. So the receive time sheet can be fragmented into 2 steps. Receive Sir, physical time sheet. Yeah, sorry सर जैसे कि टाइम शीट किसी एम्प्लॉय ने बना ली तो फिर वो रिसीव किसके पास होगी, मतलब वो किसके पास जाएगी वो टाइम शीट? वो अगर हम अब जो भी एक्चुअल वेरिफिकेशन कंपनी वगैरह में बात करें तो वो जाके सबमिट करेगा अपने क्लर्क के पास, जो उस कंपनी में क्लर्क होगा ना. यस सर. वो अच्छा, और फिर वेरीफाई किसके थ्रू करेगा? वो क्लर्क के पास दोनों डॉक्यूमेंट होगा. एक यहाँ पे जो नहीं बताया था, पूरा कहानी खत्म हो गया. कौन पूछ रहा है? यस सर. ये क्या बताया था? ये क्लर्क के पास पूरा डॉक्यूमेंट है. कौन सा डॉक्यूमेंट है? ये टाइम शीट डॉक्यूमेंट है. और इधर कौन सा डॉक्यूमेंट है? शेड्यूल है. तो ये क्लर्क के पास सबमिट कैसे हो गया? ये एम्प्लॉय आके सबमिट किया होगा ना. अब ये सब भी बताना पड़ेगा कैसे आ गया. हो गया सर, हो गया. जाके उसको पास सबमिट किया है. ठीक है सर, फिर वही वेरीफाई भी कर देगा. हाँ, वही वेरीफाई करेगा. तो क्लर्क खूब पैसा कमा रहा होगा तो उसको पैसा को हटा देना है वहां से. तो इससे जॉब कटिंग यहीं से हो रहा है. तो अब वो क्योंकि वेरिफिकेशन करना बहुत हेक्टिक जॉब होने वाला है. समझ रहे हो ना कितना प्रेशर वाला काम है ये. तो इसको हमको ऑटोमेट करना है. ऑटोमेशन में क्या होगा सब जानते ही हो, क्या हम बताएं. हाँ. तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होना है? रिसीव द फिजिकल डॉक्यूमेंट. यू कैन सी ओवर हियर द फिजिकल डॉक्यूमेंट टाइम शीट. इट इज टॉकिंग अबाउट द फिजिकल टाइम शीट डॉक्यूमेंट, राइट? एंड द इनिशिएट द टाइम शीट सबमिशन. उसके बाद होने के बाद क्या करना है? द सेकेंड स्टेप इज हाउ टू वेरीफाई. अगर हम लोग जाके उससे पूछे कि कैसे करना है, वो तो बोला कि वेरीफाई कर लेते हैं. तो वो बोलेगा कि हम तो बिजनेस एनालिस्ट है भाई, डिटेल में बताओगे तब तो हम कुछ कर सकेंगे तुम्हारी हेल्प, क्योंकि हम तुम्हारे बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करने आए हैं. तो पूरा डिटेल में थोड़ा बताओ. ठीक है, तो वो डिटेल में जाना स्टार्ट हुआ. तो वो बताया कि हम लोग वेरिफिकेशन इस तरीके से करते हैं. लेट्स सी. ये सब हमको याद रखने की जरूरत नहीं है. ये कहां से आएगा हमारे पास? एनीवन? बिजनेस डॉक्यूमेंट में सब रहेगा ये. ठीक है, हमको याद करने की जरूरत नहीं कि उस कंपनी में कैसे होता है. कोई किसी को याद है
कि तुम कोई रेस्टोरेंट में गए हो तो वहां पर कैसे खाना ऑर्डर किए थे, कोई याद किया हुआ है? नहीं याद किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो बनाएगा उसको करते करते याद हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस डॉक्यूमेंट फॉलो करेगा वो, तो उसको याद हो जाएगा, ठीक है। हमको याद करने की जरूरत नहीं है। जो उस दिन हम बता रहे थे बिजनेस डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन, जिससे हम पूछे थे कि किसी को मालूम है कि आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं, तो कुछ आधार कार्ड पूछे थे या कुछ पूछे थे, एक याद नहीं मुझे। तो वो मैं जानना चाह रहा था, व्हाट इज द बिजनेस प्रोसेस। हाँ क्या, कौन, सॉरी, वोटर आईडी कार्ड सर। yeah, sorry, हाँ, voter ID card. So I was asking for the how to register for a particular voter ID card, right? तो उस केस में हम लोग को क्या करना होगा, जो बता रहा था कि उसमें मैंने बोला था कि जिसको मालूम है देन दे हैव एक्सपीरियंस पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस, राइट। जिसको नहीं मालूम है वो क्या नहीं जानते, वो बिजनेस प्रोसेस नहीं जानते उनका, ठीक है। किसी को मालूम है कि बैंक में अकाउंट कैसे खुलता है, तो उन्हें क्या मालूम है, द बिजनेस प्रोसेस ऑफ बैंक अकाउंट ओपनिंग, राइट एवरीवन? यस सर। ओके, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। इस पूरे चैप्टर में इस एग्जांपल को कंसीडर करके बताया गया कि हम लोग कैसे इसको सिर्फ याद नहीं रखना, इसको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट, इसमें से क्या कहते हैं, इसमें से क्या कहेंगे उसको, सार सर। हाँ सार, एक्चुअल में जो कहते हैं ना उसका जिस्ट निकालना है, इसमें से निचोड़ के रखना है कि हमको कैसे करना है अपने प्रोजेक्ट में, इसलिए हम इतना डिटेल में जा रहे हैं। नहीं तो सीधे बता दे कंपेयर कॉन्फ़िगर करो, क्या फर्क पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेप इज हाउ टू कंपेयर, मतलब वेरीफाई कैसे करेंगे, कंपेयर आवर्स रिकॉर्डेड ऑन टाइम शीट टू आवर्स बिल्ड टू क्लाइंट्स, एवरीवन? यस सर। फिर देन कंफर्म दैट ऑथराइजेशन वाज गिवन फॉर एनी रिकॉर्डेड ओवर टाइम और नॉट। अगर उसको, ये तो समझ में आ ही रहा है हम क्यों बता रहे हैं, ये सब सरफेस मीनिंग है। कंफर्म दैट आवर्स रिकॉर्डेड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डू नॉट एक्सीड प्री डिफाइंड लिमिट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, राइट। किसी को 4 घंटे के लिए बोला गया है, वो 5 घंटा वहां पर काम करके आ रहा है। फिर कंफर्म दैट टोटल आवर्स रिकॉर्डेड फॉर 1 वीक डू नॉट एक्सीड प्री डिफाइंड मैक्सिमम फॉर दैट वर्कर। किसी को सप्ताह में 25 घंटा काम कर रहा है, करना है, वो उससे भी ज्यादा करके आ रहा है, वो मतलब इस टाइप का कुछ है। द थर्ड स्टेप इज, यू कैन सी ओवर हियर, इफ द टाइम शीट डॉक्यूमेंट इज वेरीफाइड देन आइदर यू कैन एक्सेप्ट और एंड द प्रोसेस, और आइदर यू कैन रिजेक्ट द टाइम शीट डॉक्यूमेंट, राइट। सो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ, ये तो इफ एल्स स्टेटमेंट से हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, हाउ टू रिजेक्ट, what is the meaning of reject over here, right? So what are the different stages in this reject statement? So let's see. So under the reject statement, update the worker profile record to keep track of rejected timesheets, right? So you need to update the worker profile that even worker, even employee has this particular rejected timesheets, right? Issue the timesheet rejection notification to the notification message to the worker, and issue a notification to the workers manager. ये सब बता चुके हैं, ठीक है एवरीवन? यस सर। बोलो हाँ या ना। यस सर। ओके, इतने स्टेप से हमको मालूम चल रहा है कि हम लोग इस टाइप का डायग्राम तो बना ही सकते हैं। लेट्स सी दिस, कौन सा डायग्राम इसको कहते हैं, फ्लो डायग्राम ना, कौन सा, फ्लो चार्ट। हाँ फ्लो चार्ट। तो ये फ्लो चार्ट जो बना हुआ है, ये ऊपर वाला जो हम लोग स्टेप देखें उसी से बना हुआ है। लेट्स सी, टेक 1 मिनट और 2 मिनट्स एंड सी वेदर इट इज कंफर्मिंग द अबव रिटन स्टेटमेंट्स और नॉट। क्योंकि यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहीं से ऑटोमेशन चालू हो रहा है। ये स्टेप, सॉरी, यहां तक तो हम लोग क्या किए, ये तो यहां तक क्या है, यहां तक तो हम लोग सिर्फ पूछ रहे हैं, ये यहां पर मैनुअल था, नीचे भी यहां तक जो मैनुअली है, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि उसको ऑटोमेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेज इन ऑटोमेशन
Which diagram? First step of automation is which diagram? Anyone? मैं एग्जाम्पल स्पेसिफिक नहीं पढ़ा रहा हूं, एग्नोस्टिक वाला है अपना भी कुछ। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ क्या, फर्स्ट स्टेप ऑफ क्या, ऑटोमेशन। फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑटोमेशन इज टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट, राइट, फ्लो डायग्राम। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो अब हमारे पास जो फ्लो चार्ट है, यू कैन सी ओवर हियर, ट्राई टू सी दिस डायग्राम whether it is confirming the above written statements. The first step is start, means start the business process, then receive the time sheet, right? So after receiving, you need to compare to the build hours. If it is matching with the build hours, and then yes, and confirm for authorization. What kind of authorization it is asking for? Anyone? बोलो। Overtime. Overtime, right? So it is asking for the confirmation whether the given employee given employee has authorization for the overtime or not, right? So if it is yes, then we need to go for again a new check, confirm our limits, then go for this yes. And if it is no, then update worker profile, send message to manager and send message to worker. It is a simple diagram. You must have drawn this kind of diagram in the last semester software engineering course. So it is not like a rocket science. So we can skip this. So now, so what is the deliverable of the first stage? Anyone? So फर्स्ट स्टेज करने पर हमको क्या मिल रहा है? फ्लो चार्ट सर। फ्लो चार्ट मिल गया हमको, यहीं पे हम खुश है बहुत, हमको बहुत खुशी हो रहा है कि हम पहला स्टेप किए और हमको फ्लो चार्ट मिल गया। अब फ्लो चार्ट को हमको, ये एब्स्ट्रैक्ट पे है, हमको इसको थोड़ा और तोड़ना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि जिस एम्प्लॉय से हम लोग ने बात किया था वो अधूरा जानता हो। अमिताभ बच्चन नहीं बोलता है कि क्या मैं वही 6 देख रहा हूं जो आप दिखाना चाहते हैं, या मुझे 9 देखना चाहिए था? तो हम लोग फिर से इसको ड्रिल करेंगे। हैविंग ड्रिल डाउन दी अबव ओरिजिनल बिजनेस प्रोसेस, वन सेकेंड, या so now we again drill down the original process step, and TLS now has a larger amount of process step, right? So हम लोग क्या करेंगे, और अब तो हमारा काम, अब हम लोग क्या कर दिए हैं, यहाँ पे बिजनेस है, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास फ्लो डायग्राम आ गया, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप का ऑटोमेशन तो चालू हो गया। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो अब इसको हम लोग यहां से हटा सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसको तो रिप्रेजेंट कर दिए ना इससे इस चीज को रिप्रेजेंट कर दिए इससे, ठीक है? यस सर। अब इसको हम लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि सेम इसका जो मीनिंग है, अब ये इसको क्या कर रहा है, इसको कंफर्म कर रहा है, ये फ्लो डायग्राम बिजनेस प्रोसेस को कंफर्म कर रहा है। तो अगर हम इसको यहां से अब हटा दें और इसमें चेंजेस करें तो क्या हमारा बिजनेस प्रोसेस चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, क्योंकि हम लोग जो यहां पर चेंजेस कर रहे हैं वो आईटी में सही से फिट बैठ जाए इसलिए कर रहे हैं। यहां पर तो ये बिजनेस था, यहाँ पे ये आईटी में फिट बैठ जाए, सही से आईटी में फिट बैठ जाए, सही से सोआ में फिट बैठ जाए, इसलिए हमको यहां पर अब चेंज करना है। लास्ट स्टेप में जो हमारे पास फ्लो डायग्राम आया था, दैट इज द actual original business process representation, right everyone? यस सर। अब ये हमारे पास जो फ्लो डायग्राम है वो बिजनेस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है,
लेकिन अब हमको सोआ के लिए इसको तैयार करना है, इसी फ्लो डायग्राम को हमको सोआ के लिए तैयार करना है। तो इसमें जो चेंजेस करोगे ना, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो चेंज कर रहे हैं इसी में, इसी चीज को मीनिंग में अलग अलग चेंजेस करेंगे अकॉर्डिंग टू सोआ प्रिंसिपल्स, राइट। तो यहाँ पर चेंजेस करने से यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो एक्चुअल में यही बिजनेस प्रोसेस रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस सर। तो अब हमको इसको थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके यहां तक पहुंचा देना है इस टाइप का। ये डायग्राम याद है ना, कि पता लगा हम बार बार ऐसा कुछ बना दे रहे हैं, सबको याद ही नहीं है। हेलो, हाँ सर याद है। चलो। Yes, तो अब हम लोग इसमें चेंज कर करके इसको सोआ प्रिंसिपल्स लगा लगा के यहां तक पहुंचा देंगे। और ये इसमें चेंज करने से क्या फायदा होगा कि ये पार्ट चेंज नहीं होगा। तो एक्चुअल बिजनेस प्रोसेस जो ये है वो भी यही है, जो ये है वो भी यही है, ठीक है। मतलब सब स्टेज जो है ना वो इसी बिजनेस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग इसको ड्रिल डाउन करेंगे अकॉर्डिंग टू सोआ, सो दैट इट कैन फिट इनटू अ सोआ इजीली, राइट। सो हाउ टू ड्रिल डाउन, इसी को हम लोग थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे और इसमें से कुछ और अच्छा चीज निकालेंगे, ठीक है। So we will see these points in next class, right? कल हम लोग इसको खत्म कर लेंगे। एक बार इसको थोड़ा रीडिंग करके आना, सब एक बार थोड़ा पढ़ लेना, ताकि मुझे आसानी हो जाए और इसको कल खत्म कर दो। Till now any issue? नो सर। Okay. no sir. One second. Let me take a minute.